Hello everyone. In this video we'll start with the first law as Coulomb's law in electromagnetic field theory. Now what is Coulomb's law? Basically Coulomb's law is used to find the force acting between two charges, two or more charges. So for example, if you assume we have charge q1 and this is charge q2 and this is their point where they are placed, they are separated by a distance as r. So when I bring these two charges near to each other, there may be two forces. One is force of attraction or force of repulsion, depending upon the polarity. So Coulomb's law states that these two charges, when they are separated by a certain distance, the force acts along q1 to q2 or q2 to q1, and it can be defined as the force between two charges is, we'll write the statement, the force acting between two charges will be directly proportional product of magnitude of charges, and it will be inversely proportional to square of distance between them. So this will be the statement for our Coulomb's law. Now based on that we'll write the mathematical term as force is directly proportional to product of charges q1 q2 and inversely proportional to square of the distance between them. Now this force और इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा चार्जेस किस मीडियम में प्लेस्ड है. सो बेस्ड ऑन दैट we can replace this proportionality constant with the value called k. K will be equal to q1 q2 by r square, where k is called as constant of proportionality. और इन जनरल में जो k का वैल्यू होता है वो होता है k is equal to 1/4 pi epsilon. Okay, so this is the typical value. Now what is mean by epsilon? Epsilon is nothing but permittivity of the medium. तो हम इसको लिखेंगे epsilon is called as permittivity of medium, जहाँ पर हम चार्जेस स्टोर करते हैं. और टिपिकली इसका वैल्यू होता है एप्सिलन इज इक्वल टू एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर. अभी एप्सिलन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. वो एक तो फ्री स्पेस हो सकता है या फिर हो सकता है वैक्यूम भी. तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. मे बी वो वैक्यूम भी हो सकता है. और एप्सिलन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, आर फॉर रिलेटिव. सो विल राइट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, क्योंकि हमेशा रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा फ्री स्पेस का. और इन जनरल अगर हम बात करते हैं फ्री स्पेस की, तो फ्री स्पेस के लिए विल राइट हियर फॉर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम अगर होता है तो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है 1. दिस इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी. सो बेस्ड ऑन दैट we'll get epsilon is equal to epsilon naught into 1, that is nothing but epsilon naught. So based on that our equation, if we consider this as equation number 1, we can write force is equal to k as 1/4 pi epsilon की जगह पर हम लिखेंगे epsilon naught into q1 q2 by r square. तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन फॉर द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. ओके, अब अगर हम बात करते हैं इस एप्सिलन नॉट की, सो जनरली अगर फ्री स्पेस होता है तो एप्सिलन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12
और इसका यूनिट होता है फेरेड पर मीटर. ओके, सो दिस इज हाउ we have fetched the equation for force between these two charges. Now let's come across two possibilities. First, maybe Q1 exerts a force on Q2, तो इसका डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ होता है, या फिर अगर Q2 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो डायरेक्शन ये आ जाएगा. सो जो फोर्स है उसको हम टू टर्म्स में भी डिफाइन करेंगे. फर्स्ट केस we'll consider when Q1 exerts a force on Q2. So we'll be writing the first case as force exerted by Q1 on Q2. तो देखिए अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा. और डायरेक्शन शो करने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए यूनिट वेक्टर, जो हम लेंगे R12 बार. आप ए भी ले सकते हो, आर यानी डिस्टेंस के लिए लिया है. सो हम फोर्स को लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन 1 to 2 F12 बार इज इक्वल टू 1/4 ये है एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू हम यहाँ पर लिखेंगे R12 बार. सो देखिए अब ये वेक्टर है, इसका ये मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगा डायरेक्शन. अर्लियर केस में हमने मैग्नीट्यूड देखा था. अब इसको हम लिखेंगे R12 बार को as this is a unit vector. तो यूनिट वेक्टर को हमें पता है इट विल बी द रेशियो ऑफ वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड. तो हम इसको लिखेंगे R12 बार का वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो ये इक्वेशन आ जाएगा. ना R12 नथिंग बट व्हाट R2 माइनस R1. तो इसको हम लिखेंगे R2 बार माइनस R1 बार डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड इसका आता है R12 यानी कि R डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस, वो टिपिकली है R. तो R इंटू आर विल बी आर स्क्वायर और ये आर क्यूब आ जाएगा. तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू R2 बार माइनस R1 बार. तो ये इक्वेशन है फोर्स एक्सर्टेड बाई Q1 ऑन Q2. और हमें पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. ये हो गया एक पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी, फोर्स exerted by Q2 on Q1. Now we'll take the same condition, says Q2 Q1. Now Q2 is exerting force on Q1, so its direction will be like this. और जो यूनिट वेक्टर है वो आ जाएगा R21 बार, 2 लेके 1 की तरफ. सो इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से आ जाएगा. सो विल राइट फोर्स F21 bar. This indicates Q2 exerting force on Q1. Again the terms ये R स्क्वायर है और ये आ जाएगा R21 बार. सो ये वाला टर्म तो सेम ही रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू इसको अब हम लिखेंगे एज R1 बार माइनस R2 बार डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड. सो ये हो जाएगा फाइनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ये तो मैग्नीट्यूड R है तो आ जाएगा R क्यूब इंटू R1 बार माइनस R2 बार. सो दिस इज आर फोर्स एक्सर्टेड बाई Q2 ऑन Q1. अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है ओनली. अब देखिए डायरेक्शन यहाँ पर R2 माइनस R1 है, यहाँ पर है R1 माइनस R2. सो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो फाइनली हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं एज F12 बार विल बी इक्वल टू माइनस F21 बार. सो दिस इज हाउ we can find the force exerted by charges on the other charges. Okay, similarly we will see examples on the Coulomb's law. Okay, thank you.